Hello students, in previous class we have seen something about composition, aggregation, association, and lastly we have seen something about enumeration. We have seen a few programs regarding the same as well. In today's class, in today's portion, we will be seeing what static class members are, how these static class members work, what to do and what not to do while accessing or while working with static members. We will be seeing a program regarding how do you create, how do you access, and how do you work with static members. And lastly, we will be seeing a short notes on static import. You have already used static import in your previous math class practical. So we will be just revising that thing again. We will be seeing one short program regarding the same, and then we will be completing with this topic. So all in all, my today's lecture will be containing or will be focused on static class members. Now before I start with static class members and what they are and how do they work, let us just see what exactly static class members are. You know that every object has its own copy of instance variable of the class. What I mean to say is, let us just assume we have a class called student. The class has three private variables. First private variable is name, which accepts a string. Second private variable is roll number, which accepts an integer, and third private variable is percentage, which accepts a double value. So if I create an object of this class student by the name S1, what will happen? A copy of class will be assigned to S1. So S1 can give a name, S1 can give a roll number, S1 can give another value to its percentage. What if I create a second copy? Again, S2 will get another blank copy of student class. S2 can assign another name, different roll number, and a different percentage value as well. The number of objects I create of students class will have different copies of student class, and every object can give different value to its instance variables. So this is how object oriented methodology works. Everybody is familiar with it. But in certain cases, only one copy of particular variable should be shared by all objects of the class. There are certain situations, there are certain scenarios in which we want only one value to be shared amongst the different objects. Such shared value or such shared instance or such shared field is called as a class variable or a static field. Understood? This class variable or static field holds a class-wide information. That is, a static variable represents all objects of class of the same piece of data. Now, just to understand this thing, just to make this thing more clearer, let us take an example. Now, let us just assume you are playing a game wherein you and your teammates attack some alien group members. And the rule of game is you can only attack your group, alien members only when your teammate count is 5 or more than 5. If your teammate count is 4 or less than 4, then you have to hide. If your teammates count is 5 or more than 5, you can attack them, you can open fire on them. So what is required? Every time before taking the next move, you have to find the strength of your team. You have to find out the total count of your team members. Now let us just see this thing, or let us just understand this scenario with respect to object oriented methodology. Let us just say you have your class called team, and every individual team member is an object of that team. So let us just say I have a class called team, and T1, T2, T3, T4, T5, T6 will have different copies of the class team present with them. Sure, what if I have one count named variable present in team class? So what will happen? The copy of count variable will be present with each and every team member. What if I change count value for T1 or first player? It will be changed for T1, but it will not be reflected back for T2, T3, T4, T5, T6. What if T4 changed value of count? Then the changed value of T4 cannot be accessible or will not be visible to T1, T2, T3, T5, T6. Done. So in such cases, what is required? A count value should be shared by
all the objects. So what we will be doing is, we will be making this count value as a static value. We will be making count variable as class variable. So what will happen? T1, T2, T3, T4, T5, T6. Out of these six objects, if any of the object change the value of count, it will be visible to all the different objects. That means any of the object change class variable, then that class variable's changed state will be visible to each and every instance present with them. So in that case, you simply access the count variable, see how many teammates are present, and then decide whether to attack or whether to stay hidden. So this is how static variables should be used. This is where static variables should be used. Now let us just see how exactly these things work out. First thing is, static variable have class scope. That means n number of objects, how the infinite number of objects if you are creating, all objects, if that class contains a shared or a static variable, then all the objects can access this class-wide information or static information. Public members can be accessed directly. Private can be accessed through public method. Again, just like any other variable, if your static variable is public, then it can be accessed publicly or globally directly. But if your static variable is a private static variable, then that private static variable can be accessed only through public method, just like any other object, just like any other variable. So on this point, let us just make a ground rule that if you are creating a static variable, just follow the rules of normal class variable. Then the next and most important point is, static class members, that is static members, exist when no objects of the class exist. Now this is the most important thing. Based on this thing, we are going to see, or we are going to have a discussion on various different topics. Let us just understand what I mean to say. Static class members exist even when no object of class exists. Normally we know that when a copy of class gets created, or when a copy of class is instantiated, a copy of class gets created or it is instantiated only when you create a new object. If new object is not created, a copy of class cannot be associated or instantiated along with it. But this is not the case with static members. Even if you don't create a single object, your static variable still exists and can be accessible. I'll give a simple example to you. You know math class? Yes, we all do. In math class, what did we do to access the members, or what did we do to access the method? We simply typed something like math.area, math.cell, math.floor, something like that, correct? But apart from those methods, there are some fields present, say pi or e. How do we access those fields? We simply said math.pi or math.e. But we can directly access them. We know that we can directly access them. But why that thing is possible? The explanation is given here. Because we have not created, before that we have not created any copy of class math. Math m equal to new math. We have not created that thing. That means another copy or new copy of math class was not created. Yet we were able to access the members. Why we were able to access the members? Because that pi was made static in math class. So that was the reason you could or you were able to access the pi value without creating an object. And why is that so? Because static class members exist even when no object of the class exists. Correct? They are available as soon as class is loaded into memory. So you don't need to worry about how can I access and when do I access. You just import the class. Simply by importing a class, you are able to access the static members. You don't need to create any new copy of object. You don't need to instantiate it. You don't need to even create an object. They are available as soon as you import them. It's as simple as that. Correct? Now let us move further. A static method cannot access non-static class members. Mind well. A static method cannot access non-static class members. Why is that so? The explanation is given prior to it. Because a static method can called
इवन व्हेन नो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास हैव बीन इंस्टेंशिएटेड। हमने ये बोला है कि स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक क्लास मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकती। नाउ कॉमन सेंस टेल्स मी कि स्टैटिक मेंबर्स किसको एक्सेस कर सकती है? स्टैटिक मेथड केवल स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है। अब ऐसा क्यों? अगर स्टैटिक मेंबर को नॉन स्टैटिक क्लास मेंबर को एक्सेस करना है तो नॉन स्टैटिक क्लास मेंबर कब इंस्टेंशिएट होंगे? ऑब्जेक्ट बनने के बाद। स्टैटिक मेथड कब इंस्टेंशिएट होती है? ऑब्जेक्ट बनने के पहले भी वो आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो ऐसी फैसिलिटी जो ऑब्जेक्ट बनने के पहले काम कर सकती है, अगर उसमें हम ऑब्जेक्ट बनने के बाद का काम करने की कोशिश करेंगे तो वो काम करेगी क्या? नहीं करेगी। सो दैट इज द रीजन स्टैटिक मेथड में केवल स्टैटिक वेरिएबल्स या स्टैटिक मेंबर्स का ही काम हम लोग लेते हैं। स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक क्लास मेंबर को हम लोग नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट के सिवाय नॉन स्टैटिक मेंबर एक्सेस नहीं होते। दैट इज द रीजन हम लोग स्टैटिक मेंबर के अंदर केवल स्टैटिक मेथड के अंदर केवल स्टैटिक मेंबर्स ही रखते हैं, दूसरे नॉन स्टैटिक मेंबर्स नहीं रखते। अब एक बात यहाँ तक अगर हम लोग समझ गए हैं कि अगर स्टैटिक मेथड के अंदर केवल स्टैटिक मेंबर ही रहेंगे तो फिर दूसरा इंस्टेंस, तीसरा इंस्टेंस, इसका तो कोई झमेला ही नहीं रहेगा। इन दैट सेंस हम लोग ये जो दिस कीवर्ड जो दो लेक्चर्स पहले हम लोगों ने पढ़ा है, वो दिस यहाँ पर यूजलेस होगा। मतलब स्टैटिक मेथड्स के साथ या स्टैटिक मेंबर्स के साथ दिस कीवर्ड कभी भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो शेयर्ड है और वो एक ही कॉपी है, तो उसके साथ फिर से करंट इंस्टेंस और नेक्स्ट इंस्टेंस और प्रीवियस इंस्टेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके साथ दिस कीवर्ड कभी नहीं लगता। सो जहाँ स्टैटिक आएगा वहाँ धिस नहीं आएगा। जहाँ धिस आएगा समझ के चलो कि वो स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक मेंबर है और उसके लिए इंस्टेंशिएट करना ज़रूरी है, तो उसके लिए धिस लगेगा। डन। अब एक थोड़ा सा पोर्शन जहाँ पे हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। देयर इज़ वन सिंपल सिनारियो इन विच अ कंपाइलेशन एरर मे अकर। हम लोग जब स्टैटिक यूज़ करते हैं तो कंपाइलेशन एरर कहाँ आ सकता है? तो कंपाइलेशन एरर आ सकता है कब? इफ़ अ स्टैटिक मेंबर कॉल्स and a non-static member in the same class by using only its method name। मतलब अगर मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर उसी क्लास का मेथड कोई दूसरे नाम का विदाउट ऑब्जेक्ट अगर कॉल करने की कोशिश करूं तो वहां पर मुझे एरर फ्लैश होता है। डन। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मैं सिंपली इतना बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा एक क्लास है ABC, उसके अंदर 2-3 मेथड्स हैं और उन 2-3 मेथड्स के बाद मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये मेथड मैंने बनाया है। अब अगर मेन मेथड के अंदर विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट मैं नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहा हूं तो वहां पर कंपाइलेशन एरर आएगा। सो व्हाट आई नीड टू डू? आई नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट आई नीड टू कॉल अ मेथड, अगर वो नॉन स्टैटिक है तो। करेक्ट। तो जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे स्टैटिक कीवर्ड के साथ तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे कि स्टैटिक इफ अ स्टैटिक मेथड कॉल्स अ नॉन स्टैटिक इंस्टेंस इन सेम क्लास बाय यूजिंग ओनली मेथड नेम, ऑफ कोर्स विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम, अगर वो कॉल किया तो वहाँ पर कंपाइलेशन एरर आएगा। डन। सिमिलरली अ कंपाइलेशन एरर अकर्स if static method attempts to access an instance variable in the same class by using only variable name। जो हम लोगों ने मेथड नेम के साथ किया कि ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम से ही वो कॉल होगा, वैसे ही ऑब्जेक्ट नेम डॉट इंस्टेंस नेम या ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम वैसे ही वो कॉल होगा। नॉन स्टैटिक मेंबर स्टैटिक मेथड के अंदर विदाउट ऑब्जेक्ट नेम कॉल नहीं होगा। अगर करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर कंपाइलेशन एरर होगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? स्टैटिक मेंबर क्या है? स्टैटिक मेंबर वो मेंबर है जो सारे इंस्टेंसेस के बीच में शेयर्ड वेरिएबल के जैसे काम करता है। स्टैटिक मेथड क्या है? स्टैटिक मेथड वो मेथड है जो केवल स्टैटिक मेंबर्स के ऊपर काम करती है। स्टैटिक मेथड क्यों स्टैटिक मेंबर्स के ऊपर काम करती है? क्योंकि स्टैटिक इंस्टेंसेस, फिर वो मेथड हो या वेरिएबल मतलब मेंबर हो, ये दोनों के दोनों को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। सिंपली आप क्लास को इंपोर्ट करो, स्टैटिक चीज़ें आप लोगों को एक्सेसिबल रहेगी। अब इस केस में जब स्टैटिक चीज़ें विदाउट ऑब्जेक्ट आपको एक्सेसिबल है
अगर आप नॉन स्टैटिक मेंबर्स उसमें कॉल करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ कंपाइलेशन एरर आएगी। इसलिए ये बोला गया है कि स्टैटिक मेथड के अंदर टिपिकली नॉन स्टैटिक मेंबर्स को इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को ही इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा फाइट का, या और दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा math.py वाला। सो आई होप स्टैटिक थिंग इज क्लियर। लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग मोर डीपली थ्रू अ प्रोग्राम। जस्ट सी, एक हम लोगों ने क्लास बनाया है पब्लिक क्लास एम्प्लॉय। द क्लास इज एक्सट्रीमली सिंपल। इस क्लास में हम लोगों ने कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, 2 स्ट्रिंग वेरिएबल आपको दिख ही रहे हैं। पहले का नाम है फर्स्ट नेम, सेकंड इज लास्ट नेम, बोथ आर प्राइवेट। द थर्ड वेरिएबल इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन। द थर्ड वेरिएबल नेम इज काउंट, इट इज ऑफ टाइप इंटीजर and of scope private, and surprisingly it has been made static. So what does static variable tells you? That this count variable will be shared amongst every object which is created in them. अगर मैं एम्प्लॉय के 5 ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ तो पांचों ऑब्जेक्ट में ये काउंट नाम का वेरिएबल शेयर्ड रहेगा। 5 ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी एक अगर काउंट की वैल्यू चेंज करता है तो सारे बचे हुए 4 ऑब्जेक्ट्स के लिए काउंट की वैल्यू वही रहेगी शेयर करने के बाद। मतलब वही रहेगी, मतलब जो चेंज की हुई है वही सब लोगों को विजिबल रहेगी। कोई 5 में से एक वैल्यू चेंज करता है तो वो चेंज की हुई वैल्यू सबको विजिबल होगी। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। नेक्स्ट लाइन इज सिंपल एंड कंस्ट्रक्टर पब्लिक एम्प्लॉय विच एक्सेप्ट्स 2 थिंग्स, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, नो बिग डील। और जो भी हम लोग फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले रहे हैं उससे हम लोग हमारे क्लास के जो वेरिएबल्स हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसे इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। एक सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ है काउंट प्लस प्लस या फिर प्लस प्लस काउंट। अब यहाँ क्या होगा, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर, मतलब जब भी मैं मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और फर्स्ट नेम लास्ट नेम पास करूँगा तो काउंट भी इंक्रीमेंट होगा। मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ काउंट इज 0। जब मेरा पहला ऑब्जेक्ट बनेगा और इंस्टेंशिएट होगा मेरा काउंट हो जाएगा 1। जब मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा इंस्टेंशिएट होगा मेरा काउंट हो जाएगा 2। जब मेरा तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा इंस्टेंशिएट होगा मेरा काउंट हो जाएगा 3। ऑटोमेटिकली आपका काउंट बढ़ते जाएगा जैसे जैसे आपके ऑब्जेक्ट्स बढ़ते जाएंगे। डन। द लास्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर इज एक्सट्रीमली सिंपल, system.out.printf। you are printing first name, you are printing last name, and you are printing count simply by using methods get first name, get last name, and get count. This get first name will be returning first name, get last name will be returning last name, and get count will be returning count. So no big deal regarding this. Correct? अब ये बन गया मेरा एम्प्लॉय क्लास। नाउ लेट अस जस्ट सी हाउ टेस्ट क्लास लुक लाइक। अब ये सारी मेथड्स को, ये सारी फंक्शनैलिटी को एक्सेस करने के लिए एक मेन क्लास बनाते हैं, मेन प्रोग्राम बनाते हैं। लेट अस सी दैट लुक्स लाइक। सो पब्लिक क्लास एम्प्लॉय टेस्ट, public static void main string args। अगेन दिस मेथड इज पब्लिक स्टैटिक void main, है ना। तो यहाँ पर जो भी मैं स्टैटिक मेथड के अंदर काम करूँगा वो विथ ऑब्जेक्ट्स ही काम करूँगा, विदाउट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर काम नहीं चलेगा। करेक्ट? ओके, लेट अस गो थ्रू। सो आई हैव क्रिएटेड 2 ऑब्जेक्ट्स, एम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, क्या होगा काउंट का, काउंट प्लस प्लस, एम्प्लॉय E2 काउंट का, काउंट प्लस प्लस। डन। ओके, चलो देखते हैं अभी कैसे काम होता है। नेक्स्ट लाइन system.out.printf वाया E1.getCount, मतलब E1.getCount अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, और E2.getCount करता हूँ तो क्या आउटपुट मिलेगा। ये 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे की है। एंड देन system.out.printf वाया एम्प्लॉय गेट काउंट कितना आएगा, फिर से एम्प्लॉय गेट काउंट कितना आएगा, ये मैं E1.get फर्स्ट नेम गेट लास्ट नेम वगैरह वगैरह करके यहाँ पे भी मैं करने वाला हूँ। नाउ लेट अस जस्ट ट्रेस दिस एल्गोरिथम, और लेट अस जस्ट ट्रेस दिस प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। एम्प्लॉय E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और मैंने 2 स्ट्रिंग पास किए हैं, क्या होगा, लेट अस जस्ट ट्रेस बैक द प्रोग्राम। अगेन कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर में फर्स्ट नेम लास्ट नेम जाएगा और काउंट की वैल्यू चेंज होगी। सो काउंट वैल्यू विल बी 1, और क्या प्रिंट होगा, एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर फर्स्ट नेम, क्या है फर्स्ट नेम पास किया हुआ, सूजन, फिर बेकर, और वहाँ पे आएगा 1, मतलब आपका क्या आएगा, सूजन, बेकर और काउंट इक्वल टू 1। पक्का? गुड। फिर मैं क्रिएट करूँगा E2, तो जैसे ही मैं E2 क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E2 का नाम क्या है, सरनेम क्या है, बॉब और ब्लू। सो यहाँ पे आउटपुट में रहेगा एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर बॉब ब्लू काउंट इक्वल टू 2। सो आउटपुट में क्या दिखेगा, एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर
बॉब ब्लू काउंट इक्वल टू 2। तो ये दो ऑब्जेक्ट बनने के बाद यहां तक का हमारा काम हो गया, डन। अब हम लोग काम करेंगे नेक्स्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन E1 डॉट गेट काउंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन E2 डॉट गेट काउंट, डन। अब E1 डॉट गेट काउंट जब हम लोग लेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी गिविंग 2। क्यों 2? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स बने हैं, काउंट की वैल्यू चेंज हो चुकी है, इट विल बी गिविंग वैल्यू एज 2। सेम काम हम करेंगे E2 के ऑब्जेक्ट से, E2 हम लोग यूज करेंगे, E2 डॉट गेट काउंट हम लोग यूज करेंगे। सो व्हाट विल बी E2 डॉट गेट काउंट रिटर्निंग, E2 डॉट गेट काउंट विल बी रिटर्निंग 2 अगेन। क्यों 2? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं, दो बार इंक्रीमेंट हो चुका है, तो वो दो कॉपी शेयर्ड हो चुकी है, डन। वाया एम्प्लॉय डॉट गेट काउंट अब हम लोग क्लास नेम डॉट गेट काउंट मेथड कॉल करेंगे। क्यों? स्टैटिक है, कर सकते हैं। सो एम्प्लॉय डॉट गेट काउंट अगर हम लोग कॉल करते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्ट तो भी वैल्यू आएगी उसकी 2। क्यों 2? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स मेरे बने हुए हैं, करेक्ट। नाउ पे अटेंशन, what I want you to do is I want you to copy this code as it is, paste in your IDE and try to execute it. While executing, create different objects at different point of time. और हर बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद E1, E2, E3, E4, E5 जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे हर बार गेट काउंट मेथड कॉल करेंगे और एम्प्लॉय डॉट गेट काउंट मेथड भी कॉल करके देखेंगे, चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट बनने के पहले क्या वैल्यू आती है और ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या वैल्यू आती है, डन। तब आप लोगों को पता चलेगा कि काउंट वेरिएबल शेयर्ड है, मतलब क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट ने कोई भी वैल्यू अगर चेंज करता है काउंट का तो वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स शेयर कर लेते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स वही वैल्यू दिखाते हैं, डन। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने स्टैटिक के बारे में देखा, स्टैटिक के बारे में पढ़ा और समझा कि स्टैटिक वेरिएबल्स कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ नहीं करते हैं, क्या करना चाहिए, कंपाइलेशन एरर कब आ सकती है और कब हम लोगों को वो अवॉइड करना है। वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स हियर इन दिस स्टेप। नाउ द लास्ट थिंग इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड यू हैव यूज दिस थिंग एज वेल, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक इम्पोर्ट, है ना। सो व्हाट एग्जैक्टली स्टैटिक इम्पोर्ट इज, a static import declaration enables you to import the static members of a class or interface so you can access them via unqualified names in your class. That is, class name and a dot are not required to use imported static member. अब यहाँ बोला यह गया है कि a static import ये एक फैसिलिटी है, it is not at all mentioned anywhere कि ये करना ही है या ज़रूरी है। लेकिन अगर आप लोगों को मेथड नेम विदाउट क्लास नेम या विदाउट ऑब्जेक्ट नेम एक्सेस करनी है तो आप स्टैटिक इंपोर्ट का इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हो। अगर आप स्टैटिक इंपोर्ट करते हो तो आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी, द डिक्लेरेशन स्टैटिक इंपोर्ट एनेबल्स यू टू इंपोर्ट द स्टैटिक मेंबर्स ऑफ अ क्लास। अगर मैं स्टैटिक इंपोर्ट कर रहा हूँ किसी क्लास को तो उस क्लास में जितने भी स्टैटिक मेंबर्स होंगे, मेथड्स या वेरिएबल्स दोनों, वो आप लोगों को विदाउट डॉट ऑपरेटर एक्सेस करने की परमिशन मिलेगी। पक्का? कैसे? नाउ लेट अस जस्ट सिंपली सी दी प्रोग्राम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट में लिखा, मैंने जानबूझ के ये लाइन लास्ट में डाली हुई है और जानबूझ के ये मैंने हाईलाइट किया है, बोल्ड किया है। क्या लाइन है? इम्पोर्ट स्टैटिक जावा डॉट लैंग डॉट मैथ। इसके पहले हम लोगों ने लिखा था क्या? इसके पहले प्रैक्टिकल में हम लोगों ने ये लाइन नहीं लिखी थी, डन। हम लोगों ने सिर्फ import java.lang.math इतना ही किया था, दैट वाज अ सिंपल इंपोर्ट। नाउ दिस इज अ स्टैटिक इंपोर्ट। अगर मैं स्टैटिक इंपोर्ट करता हूँ तो मुझे फैसिलिटी मिलती है मैथ क्लास के वेरिएबल्स एज वेल एज मेथड्स को विदाउट डॉट ऑपरेटर यूज करने की, करेक्ट। लेट अस जस्ट से मैं ये लाइन import java.lang.math सबसे ऊपर लिखता हूँ और फिर ये पूरा का पूरा स्टैटिक इंपोर्ट का प्रोग्राम लिखता हूँ, तो क्या होगा? जो मुझे math.sqrt लिखना पड़ता था अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं। आई कैन डायरेक्टली यूज समथिंग लाइक sqrt 900, system डॉट डॉट प्रिंटलन सेल -9.8। आई कैन यूज वेरिएबल्स एज वेल, मैथ डॉट पाई या मैथ डॉट ई लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं, आई कैन डायरेक्टली यूज पाई और ई। ये फैसिलिटी मुझे मिलेंगी अगर मैं स्टैटिक इंपोर्ट करूँगा तो। अगर मैं स्टैटिक इंपोर्ट नहीं करूँगा तो मुझे वो मैथ डॉट पाई मैथ डॉट ई यही लिखना पड़ेगा, डन। सो दिस इज अ फैसिलिटी विच इज़ प्रोवाइडेड टू यू बाई जावा called as a static import. It is nowhere written that you have to use this facility each and every time you use a static variable or static program. It is a facility. If you want, you can use. If you want, you can skip it.
just being a part of syllabus, and just to make things more clearer and more easier, this facility is provided to you. So what we have seen in today's program or in today's part, we have seen how static works, how static is to be used, why do we need static, and how static import is used. So through two programs we have tried to discuss these things. Let me give you one assignment. Slide number 49 present in this is an assignment. There is a complete detailed problem statement given over here. What you have to do, you have to create a class called savings account, then use a static variable annual interest rate to store annual interest rate for all account holders and all those things. I want you to go through this problem and try to solve this thing on your own. In next portion I will be discussing this, and then we will be moving further. Done. Mostly after this problem I will be taking one more, and then I will be going for package declarations. Clear? So we will stop here today itself. I want you to attempt and solve this problem on your own. Thank you.